अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ क्लियर आ रही है तो वेरीफाई करते हैं। और सिर्फ 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, बाकियों को भी कहते हैं आ जाएं क्लास में, तो स्टार्ट करते हैं फिर हम। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आवाज़ अब भी क्लियर ही होगी। दिस इज़ द क्लास ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स, द सेक्शन इज़ सेक्शन ए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, and obviously we are on our personal ID, so you will have to reconnect after every 40 minutes. Zoom will show you the reminder obviously. So let's start. लास्ट क्लास में हमने बात ख़त्म की थी लॉजिक प्रोग्रामिंग के ऊपर, और लॉजिक प्रोग्रामिंग में जितनी हमने बात की हम वहीं तक रखते हैं। देर आर अदर थिंग्स इन दैट एज वेल, और अगर हम चाहें तो हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं एज इट इज़ इन सम सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट हम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर नहीं जा रहे हैं। दिस कोर्स इज़ नॉट अबाउट दैट, एंड इट्स जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ लॉजिक प्रोग्रामिंग, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और उसके अंदर भी हम काफ़ी एडवांस टॉपिक्स के ऊपर नहीं गए। So that's as much as we are going to discuss on logic programming. Today we are going to start another type of chapter, another further chapter known as proofs. आज हम proofs के ऊपर बात करेंगे. Let me share the screen with you. I hope screen is visible. Screen और आवाज़ दोनों के मुतालिक मुझे बता दें, दोनों की वैल्यू ट्रू है, दोनों की आवाज़ आ रही है आपको, दोनों आप तक रिसेप्टेबल हैं, राइट? स्क्रीन भी दिख रही है, आवाज़ भी क्लियर है, दैट्स ओके, ग्रेट। सो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ्स के टॉपिक को। मुतहर इमाम लास्ट टॉपिक से ही रिलेटेड कुछ पूछ रहे हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स कंप्लीट नहीं हुए थे, या लाइक आई सेड कि हम उनके ऊपर अब डिस्कस नहीं करेंगे। इट वेंट करना तो थे हमने, बट हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है अब, और उस टॉपिक को इतना ज़्यादा आगे लेके जाना भी नहीं चाह रहे हम। अ, क्योंकि उसको और जितना आगे लेकर हम जाएंगे, काफ़ी एडवांस टॉपिक्स भी हैं उसके अंदर, उसको आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो यू कैन डू एज मच एज़ यू कैन, आप बेशक करें उसके ऊपर काम, और अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो अंडर द रेडार मुझसे ईमेल करके पूछते रहें कि सर मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, इसमें ये कैसे होगा, तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. But as far as our course goes, that is as much as we are going to discuss on logic programming, and now we are moving towards another topic known as proofs. So proofs को हम start करते हैं. The topic of proofs, as by its name suggests that we will be working on proving things. How can we prove things? What are the steps involved in proving things? And how can a proof be considered as a proof and not just some fallacy? उसके ऊपर भी आते हैं आगे चल के. So let's move towards the first slide. What is our motivation behind this thing? Why are we trying to understand what proofs are as a student of software engineering? So the basic thing is that whenever you write a program, whenever you do anything in computer, when you try to tell computer something to do, you will have to do it according to some rules and regulations, which means you are going to prove the rules and regulations, that why are they the rules. So according to John Locke, a very renowned philosopher, he said that mathematical proofs are like diamonds. They are hard and clear and will be touched with nothing but strict reasoning. If you want to touch a diamond can cut a diamond. Okay, so if you want to prove something in mathematical proofs, it's similarly that if you want to get to the bottom of something, if you want to touch a proof and understand that proof, you will have to do that by only one thing, and that is reasoning. What are the reasons behind that? Mathematical proofs are in a sense the only true knowledge we have. The true knowledge, not the knowledge relying on some sort of societal norms, or not the knowledge relying on some sort of history, but this is a knowledge that is relying on its trueness. It is the actual true knowledge. 1 2 3 4, this counting is as much real as we can get.
They provide us with a guarantee as well as an explanation. They tell us about rules and regulation, and they can guarantee that why this explanation is valid and why is it not. So like I said, we use algorithms in CS and software engineering. So an algorithm should be an optimal solution. It should be complete. It should terminate. It should solve your problem. All of these things are starting with should. An algorithm should be able to solve your problem. But okay, an algorithm will be able to solve your problems, but how can you prove that your problem has been solved? Here comes proof. That prove that your algorithm has been finished, prove that your algorithm has terminated the operation, prove that your algorithm has found a solution. You may also want to show that it is more efficient than another method. Proving certain properties of data structures may lead to new and more efficient of simpler algorithms. Some type of advanced advantages of proofs are in CS. So let's start with proofs. And it is going to be very messy at the end of this lecture, so be attentive with everything. There are some terminologies that we are going to use. A lot of these terminologies will be not be using this in all of the terminologies in this lecture, and maybe not in this course, but some of the terminologies will be used. For example, a theorem. What is a theorem? We know what is a theorem. A theorem is a statement that can be shown to be true. एक थ्योरम एक ऐसी चीज़ होती है जिसको प्रूव कर दिया गया हो जो कि हमें पता है कि ओके दिस इज़ ट्रू. like like a commonly known theorem is as a Pythagoras theorem. Why is Pythagoras theorem a theorem? Because it has shown to be proved. It is shown to be true via a proof. एक proof का सहारा लेते हुए उसको prove कर दिया गया है कि this is always true. This is a theorem. 2 plus 2 is equal to 4. Right? Although this is not a theorem, but this is shown to be true. It is shown, it is proven that when you square something of a sum a plus b whole square, it always equals to a square plus 2ab plus b square. This is shown to be true. This is a theorem. Then there is a proof. A proof is a sequence of statements from an argument that form an argument. So it is like an algorithm. A proof is the collection of statements that is generating some theorem. जिस तरह ऊपर थ्योरम वाले में लिखा हुआ है ना कि वी आर अ प्रूफ, तो वो जो प्रूफ आप लिखेंगे ना जिसके अकॉर्डिंगली आप थ्योरम प्रूफ करेंगे, उन सब स्टेटमेंट्स को हम कहेंगे कि दिस इज द प्रूफ. देन देर आर एक्सियम्स जिसको पोस्टुलेट्स भी कहा जाता है. दीज आर स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रिवियल, दैट आर टेकन टू बी सेल्फ एविडेंट एंड अज्यूम टू बी ट्रू. ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं होता है. ठीक है, दे आर कंसिडर्ड टू बी ट्रू. इसके लिए अलग से प्रूफ लिखने की ज़रूरत नहीं है. लाइक एन एक्सियम इज फॉर एग्जाम्पल 2 plus 2 is equal to 4. Now there are a lot of ways to prove it, but this is a trivial statement. This is a self-evident statement that this is true. 2 plus 2 equal to 4. We all assume it to be true. Okay, so this is an axiom, a postulate. Yeah, for example, 2 square is equal to 2 into 2. A square is equal to A into A. This is not a theorem. This is not proven, but this is an axiom. This is a thing that everyone follows. This is assumed to be true. Then there are lemmas. A lemma is a theorem useful within the proof of a theorem. एक ऐसा theorem जो कि आप एक theorem को prove करने के लिए, एक चीज़ को prove करने के लिए अगर आपको कोई और चीज़ भी prove करनी पड़ जाए, एक्चुअली आप प्रूव ये करना चाह रहे हैं कि a इक्वल टू बी फॉर एग्जाम्पल, बट उसके लिए आपको ये प्रूव करने की ज़रूरत पड़ गई कि a इक्वल टू 3. तो ये जो a इक्वल टू 3 आप प्रूव कर रहे होगे, इसका जो प्रूफ लिखोगे दैट विल बी नोन एज अ लेमा. देन देयर इज़ अ corollary. It is a theorem that can be established from theorem that has just been proven. अगर आप एक थ्योरम को प्रूव करने के बाद एक और थ्योरम उसके अगेंस्ट प्रूव करना चाहते हो, तो दैट नेक्स्ट थ्योरम विल बी नोन एज अ corollary. प्रोपोजिशन हम सबको पता है कि क्या होती है. इट इज़ अ लेस इम्पॉर्टेंट थ्योरम. ये भी एक थ्योरम ही होता है. प्रोपोजिशन इज ऑल्सो अ थ्योरम, बट इट कैन ईदर बी ट्रू और फॉल्स. ठीक है, इट कैन बी प्रूवन और डिसप्रूवन. इट इज़ अ थ्योरम which means it has some kind of proof, but that proof can either positify it or negatify it. यानी कि या तो वो उसको प्रूव कर देगा या उसको डिसप्रूव करेगा. सो प्रोपोजिशन, वी ऑल नो व्हाट प्रोपोजिशन इज. देन देयर इज कंजक्चर. इट इज़ अ स्टेटमेंट हुज ट्रूथ वैल्यू इज अननोन. एक ऐसी चीज़ जिसकी ट्रूथ वैल्यू हमें नहीं पता. एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसा थ्योरम कह लें कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसका हमें ट्रूथ वैल्यू नहीं पता, दैट इज़ नॉन एज अ कंजक्चर. देन देर आर रूल्स ऑफ इन्फेरेंस. इसको हम आज डिटेल में देखेंगे.
द रूल्स ऑफ इन्फेरेंस आर द मीन्स used to draw conclusions from one assertions and to deliver an argument or a proof. Rules of inference बेसिकली ये डिफाइन करते हैं आपको. अच्छा, इन्फेरेंस इज बेसिकली, इसको ऐसे ही समझ लें फॉर द टाइम बिंग. इन्फेरेंस इज बेसिकली इम्प्लीकेशन. इम्प्लीकेशन इज व्हाट? इफ देन एल्स, सॉरी, इफ देन अदरवाइज देन. सो वो जो हमने कंडीशनल एक कनेक्टिव देखा था ना, दैट इज अ रूल ऑफ दैट इज एन इन्फेरेंस, दैट इज एन इम्प्लीकेशन. जो कि हमने एक कनेक्टिव देखा था ना कि इफ ए देन बी, ए एरो बी, इसको हम कहते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखो से ये वाली एक चीज़ है P देन समथिंग, तो ये इम्प्लीकेशन है ना. दिस इज़ वन ऑफ द रूल्स ऑफ इन्फेरेंस. सो जो रूल्स ऑफ इन्फेरेंस हैं बेसिकली वो कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं, यानी कि देन के बाद क्या होगा, कंक्लूजन क्या है, कुछ असर्शंस के ऊपर जो कि आपके प्रेमिस होते हैं, जिसको हम इफ़ के अंदर लिखते हैं, जिसको हम कंडीशन कहते हैं. और इस सारी चीज़ से हम कोई बात समझते हैं जिसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं. ठीक है भाई, अगर हम कहते हैं कि इफ़ देयर आर क्लाउड्स देयर विल बी रेन, ठीक है, सो हम क्या कह रहे हैं कि बेसिकली तो ये एक इन्फेरेंस हो गई, एक इम्प्लीकेशन हो गई, क्योंकि हमने इसमें एक लॉजिकल कनेक्टिव यूज़ किया है इम्प्लीकेशन का. इफ़ देन, इफ़ देयर आर क्लाउड्स देन देयर विल बी रेन, फॉर एग्जाम्पल. सो इफ़ देयर आर क्लाउड्स, नाउ देयर आर क्लाउड्स आर योर कंडीशन. इसको हम डिटेल में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. देयर आर क्लाउड्स इज़ अ कंडीशन और अ प्रेमिस, एंड देयर विल बी रेन इज़ अ कंक्लूजन. अब इन सारी चीज़ों से आप कुछ ड्राइव कर रहे हो, वो एक आर्ग्यूमेंट है या एक प्रूफ है. ये सारी चीज़ मिलकर एक प्रूफ, एक चीज़ प्रूफ कर रही है, और वो यही चीज़ प्रूफ कर रही है कि बारिश होगी अगर बादल है तो. ठीक है, सो इसमें से एक चीज़ आर्ग्यूमेंट है, एक चीज़ कंक्लूजन है, लेकिन इस पूरी चीज़ को मिलाकर हम कहेंगे नाउ दिस होल थिंग इज़ एन आर्ग्यूमेंट, दिस इज़ अ प्रूफ दैट्स इफ़ देयर आर क्लाउड्स देयर विल बी रेन. Today we are going to discuss some rules of inference that are known to be true. ठीक है, ये वही मैंने जिस तरह बारिश वगैरह की एग्जांपल ली ना, ये वही दे रहा है यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल ए बी सी अगर इंटीजर्स हैं और हम कहते हैं ए देन बी और ए देन सी देन ए देन बी प्लस सी भी होगा ट्रू. इसी तरह अगर हम नीचे वाली बात कहते हैं और उससे नीचे वाली बात कहते हैं, तो वी कैन प्रूव, इन सब की प्रूविंग के बाद वी कैन प्रूव अ कॉरोलरी दैट अगर ए बी सी इंटीजर्स हैं तो ए बी ए सी और ए एम बी प्लस एन सी भी होगा अगर एम और एन बी इंटीजर्स हों तो इसमें से ये चीज़ हमारी, ये जो चीज़ें हैं ये हमारी अजम्पशंस हैं, जिसको हम कंडीशंस कह लेते हैं. ये हमारा जो है वो कंक्लूजन है, और इससे हमारे पास आर्गुमेंट कुछ प्रूव हो रहा है, कोई चीज़ एक प्रूव हो रही है, वो ये सारी चीज़ें जो कि प्रूव हो रही है. सो अच्छा, एन आर्गुमेंट इज़ वैलिड. नेक्स्ट, हाँ यहाँ से स्टार्ट करेंगे. एन आर्गुमेंट इज़ वैलिड, किसी भी आर्गुमेंट को यानी किसी भी बात को, अब उस बात के अंदर कंक्लूजन भी है, उस बात के अंदर हाइपोथेसिस भी है, प्रेमिस भी है, यानी कि पूरी बात आप कर रहे हैं अगर ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा. ये जो सारा आपने बात कही ना, ये सारी बात कही है, इसको हम आर्गुमेंट कहेंगे. दिस आर्गुमेंट कैन बी वैलिड, इट इज़ वैलिड इफ़ ऑल द हाइपोथेसिस आर ट्रू. अगर सारी बातें जो आपने कही वो ट्रू हैं तो फिर मैं कहूँगा कि आपकी सारी बात ट्रू है. ठीक है भाई, मैंने कहा कि अगर इफ़ देयर आर क्लाउड्स देयर विल बी रेन, तो क्या दोनों चीज़ें ट्रू हैं? अगर ये दोनों चीज़ें ट्रू होंगी तो मैं कहूँगा ठीक है, आपका आर्ग्यूमेंट सही है. ठीक है, सो इफ़ वेन एवर ऑल द हाइपोथेसिस आर ट्रू आई विल से ओके योर आर्ग्यूमेंट इज़ वैलिड, क्योंकि आप जो बातें कर रहे हैं वो सही है. इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल देयर इज़ एन आर्ग्यूमेंट दैट इमरान खान इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, राइट. अब व्हाट आर द हाइपोथेसिस देयर? देयर आर हाइपोथेसिस, अगर वो सारी चीज़ें ट्रू हैं तो फिर इसका मतलब है कि मैंने जो बात कही है कि इमरान खान इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये बात ट्रू है. तो इसके लिए मैं देखूंगा कि क्या सारी बातें, क्या सारे हाइपोथेसिस ट्रू हैं. पहला हाइपोथेसिस क्या है कि आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर है. अब प्राइम मिनिस्टर होता क्या है, पहले मैं ये देखूं क्या प्राइम मिनिस्टर की डेफिनेशन सही है, क्या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का होता भी है या नहीं, राइट. चलें, एक बात तो ट्रू हो गई. फिर इमरान खान को मैं सर्च करता हूँ कि इमरान खान क्या एक पॉलिटिशियन है, क्या उसने एक सीट जीती है, क्या वो उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ इस प्राइम मिनिस्टर की सीट पे आए हैं, तो मैं कहूँगा ओके यस ये चीज़ भी ट्रू है. इसका मतलब है आपकी पूरी आर्ग्यूमेंट जो है वो ट्रू है. ठीक है, बेसिस ऑन, यानी कि आपका अगर कोई एक हाइपोथेसिस भी अगर गलत हो जाता है बीच में तो हम कहेंगे कि आपकी बात गलत है. ठीक है,
So it can be written like this in the program, in your what do you call it, इन योर आर्ग्यूमेंट। ये है आपका सारा आर्ग्यूमेंट। आपका एक हाइपोथेसिस या एक प्रेमिस है, प्रेमिस वन, प्रेमिस टू, प्रेमिस थ्री, जितनी भी आपने बातें करनी है आपको सारी करें और इन सब के दरमियान लगा दें एंड। सो यू विल सी कि अगर इन सब के दरमियान एंड है, यानी कि ये सब ट्रू हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ओके मेरा आर्ग्यूमेंट ट्रू है। इसको पी कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा समझने में। अ, होना पी चाहिए था, यहाँ पे क्यू लिख दिया गया है, बट द पॉइंट इज़ कि कोई आर्ग्यूमेंट अगर आप प्रूव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसकी सारी की सारी एंड लगा हुआ है, इसकी सारी की सारी हाइपोथेसिस ट्रू है, तब मैं करूँगा, कहूँगा कि ये क्यू जो है ये वैलिड है। ठीक है, यस अब्दुल वदूद, मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यूजुअली अ प्रूफ इन्वॉल्व्स प्रूविंग अ थ्योरम विया इंटरमीडिएट स्टेप्स। ये वही बात है जो कि अभी हमने 2-3 स्लाइड्स पहले कही। यहाँ पे सबसे ऊपर वाली लाइन, अ थ्योरम इज अ स्टेटमेंट दैट कैन बी शोन टू बी ट्रू विया अ प्रूफ। नाउ व्हाट इज अ प्रूफ? अ प्रूफ इन्वॉल्व्स प्रूविंग अ थ्योरम विया सम इंटरमीडिएट स्टेप्स। फॉर एग्जाम्पल, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए? कुछ अजम्पशंस उसमें होती हैं कि अच्छा लेट सपोज एक्स इज़ एन इंटीजर, ये अजम्पशन है हमारी कि एक्स अगर एक इंटीजर है। फिर हम कुछ कंक्लूजन्स लिखेंगे, फिर हम कुछ लिखेंगे व्हाट स्टेप्स शुड वी टेक इन ऑर्डर टू प्रूव दैट। फिर हर एक इंटरमीडिएट स्टेप के प्रूफ जस्टिफाइड होने चाहिए लाजमी। ऐसा कोई स्टेप नहीं होना चाहिए जो कि आप कहें कि भाई ऐसा है, क्यों है ये बताएं। दिस इज़ द बेसिस ऑफ प्रूफ्स। क्यों है कोई भी चीज़ वो बताएं। वाई आर यू सेइंग इफ़ दैट थिंग ऑब्वियसली इज़ नॉट ट्रिवियल। अगर वो चीज़ ट्रिवियल नहीं है, वो चीज़ अज्यूम टू बी ट्रू नहीं है, आप ऑब्वियसली ये प्रूव नहीं करेंगे। कोई आप बड़ी चीज़ प्रूव कर रहे हैं तो उसमें आप ये प्रूव करने बैठ जाएंगे अच्छा मैंने ए स्क्वायर को ए इंटू ए क्यों लिखा है। दैट इज़ नॉट अवर इशू, दैट इज़ एन अज्यूम थिंग दैट इज़ ट्रू। हमने सिर्फ उसको लिखने का तरीका चेंज किया है। बट अगर आप कोई दूसरी चीज़ कर रहे हैं तो वो चीज़ फिर प्रूव्ड होनी चाहिए, जस्टिफाइड होनी चाहिए, क्यों आप ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, क्यों आप लिख रहे हैं कि अंडर रूट 3 इज़ नॉट इक्वल टू पाई, क्यों लिख रहे हैं आप, तो वो थोड़ा सा आप उसको अंदाज़ा लगाएं, उसको बताएं क्यों आप लिख रहे हैं कि वो दोनों रैशनल नहीं है। तो फिर आप रैशनल को डिफाइन करें, अच्छा रैशनल नंबर्स ये होते हैं, अंडर रूट 3 रैशनल है, पाई रैशनल नहीं है, इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि एक चीज़ रैशनल है और एक चीज़ रैशनल नहीं है। जस्टिफाई करें अपनी बात को, डायरेक्ट कहें ना। ईच एंड एवरी स्टेप शुड बी जस्टिफाइड। Now we are going to start some of the rules of inference. There are multiple rules of inference, around 8 to 10 rules हैं जो कि अभी हम देखेंगे एक एक करके, और अच्छी तरह से इसको समझेंगे। इट दीज थिंग्स आर वेरी वेरी मच, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर रूल्स। ठीक है, तो दे डू नॉट रिलाई ऑन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल थिंग्स, दीज आर रूल्स। ठीक है, रूल्स हैं, इसका मतलब है कि ये चीज़ ट्रू है, ये चीज़ होगी हमेशा। अब डिपेंड करता है कि आपका सिनेरियो क्या है, लेकिन वो चीज़ हमेशा ट्रू होगी। कैसे होगी वो हम देखते हैं, इंट्यूटिवली ट्रू होंगी कुछ चीज़ें। अच्छा, मुत्ताहिर इमाम कह रहे हैं प्रीवियस पेज, कौन सा पेज कह रहे हैं? दिस वन। रिकॉर्डिंग हो रही है वैसे, आप बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ अभी समझना चाह रहे हैं तो बता दें। विच स्लाइड आर यू रेफरिंग टू? ओके, दिस वन। आई थिंक दैट्स, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। इसमें हमने सिर्फ यही बताया कि एन आर्ग्यूमेंट क्यू कैन बी वैलिड, देयर विल बी क्यू इफ़ ऑल ऑफ द पीज आर ट्रू। सो ये हम बात कह रहे हैं सिर्फ, इफ़ वेन एवर ऑल द हाइपोथेसिस आर ट्रू वी विल से दैट द आर्ग्यूमेंट इज़ वैलिड। आई विल मूविंग ऑन, आई डोंट थिंक देयर इज़ अ क्वेश्चन। अगर कोई है भी तो भेज दें, मैं फिर अपने टाइम के हिसाब से इसको जवाब दे दूंगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द रूल्स ऑफ इन्फेरेंस। अच्छा, रूल्स ऑफ इन्फेरेंस को ऐसे ही समझें कि जैसे कुछ रूल्स होते हैं ना, रूल्स ऑफ अर्थमेटिक हैं। जैसे रूल्स ऑफ अर्थमेटिक ये है कि a इंटू थ्री विल बी इक्वल टू a इंटू ए, नहीं, a इंटू थ्री विल बी इक्वल टू a+a+a। कि अगर आप किसी चीज़ को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उस चीज़ को 3 दफ़ा प्लस कर रहे हैं। ये एक रूल है अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक इसी तरह काम करती है, मल्टीप्लिकेशन इसी तरह काम करती है। ठीक है, सो इसी तरह बहुत सारे रूल्स अब हम लॉजिक के देखेंगे, इन्फेरेंस के रूल्स देखेंगे, जिसमें सबसे पहला रूल, उसका नाम है मॉडस पोनेंस। नाम अगर हम याद कर लेंगे तो रेफ़र करना ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि तकरीबन सब चीज़ें एक जैसी ही लगेंगी। आगे जब हम 8-10 रूल्स देख लेंगे तो यू विल सी कि तकरीबन सब चीज़ें एक ही जैसी लग रही हैं। सो इसी वजह से इनको नाम दे दिए गए हैं जो कि थोड़ा सा
डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे. सो नंबर वन रूल इज modus ponens. It is basically a law of detachment. It is basically a law of detachment, and it is shown by the tautology given here. ये है tautology, sorry, this one. Now again, I am not going to tell you what is a tautology. Tautology basically means not going into detail. Okay, something that is always true. So this expression is always true. So obviously, why the rule of inference is shown as a tautology? Because the rule of inference is a rule, and a rule should always be true. You can't say that 2 plus 2 equal to 4 is not a rule. It is a rule. 2 plus 2 is equal to 4. You can't say कि नहीं अगर 2 की वैल्यू हम चेंज कर दें तो 2 plus 2 4 नहीं होगा. नहीं, 2 if 2 is 2 and 2 plus 2 it is always going to be 4. There is no other way around it. Similarly यहाँ पर भी ऐसा ही है कि P and P then Q ये चीज़ हमेशा ट्रू है. This is a tautology. And this is the first rule of inference. The first rule of inference is saying, जो कि मैंने सेलेक्ट किया है, मैं इसको अब रीड आउट कर रहा हूँ, रिसाइट कर रहा हूँ आपके सामने. The first rule of inference, which is modus ponens, it says that if there is P and P implies Q, then that means that there is Q. Now follow the cursor. If there is P and P implies Q, then there is Q. In Urdu language, अगर P है और हम ये भी कह रहे हैं कि अगर P होगा तो Q भी होगा, तो इसका मतलब है कि Q भी है. समझ आ रही है बात? अगर P है और P होगा तो Q भी होगा, तो इसका मतलब है कि Q है. और यही चीज़ नीचे दूसरे तरीके से लिखी हुई है कि अगर P देन Q ट्रू है और आप कह रहे हैं कि P देन Q होगा और P है तो इसका मतलब है Q है. यही चीज़ उर्दू में जो मैंने अभी कही, ये इसका सेपरेटर है बेसिकली. इससे पहले अलग पढ़ें, इसके बाद अलग पढ़ें. इससे पहले अगर मैं इसको पढ़ता हूँ तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ P होगा तो Q होगा, P होगा तो Q होगा. इसका मतलब ये हुआ कि P है इसीलिए Q भी है. P होगा तो Q होगा, which tells us that P है तो Q भी है. और यहाँ पर भी यही बात कह रहे हैं, सिर्फ बताने का तरीका अलग है. So basically the rule is this is your rule, that if there is something and you say that because of that something there can be something named Q, then obviously there is Q. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटी सी एग्जाम्पल इसकी क्या होगी. मॉडस पोनेंस रूल्स की एक एग्जाम्पल लेते हैं. एक एग्जाम्पल ये है कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप फेल हो जाएंगे, और आप पढ़ नहीं रहे. ठीक है, पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे, और आपने नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप फेल हो गए ना. दिस Q इज़ फॉर फेलियर, दिस P इज़ फॉर स्टडी, दिस P इज़ फॉर स्टडी, दिस Q इज़ फॉर फेलियर. इफ़ स्टडी देन इफ़ नॉट स्टडी देन फेलियर. अगर आप पढ़ेंगे नहीं, एग्जाम्पल थोड़ी सी मैंने टिपिकल ले ली है. पढ़ेंगे नहीं इज़ अ नेगेशन. कुछ और एग्जाम्पल बताएं मुझे इस तरह की जिन लोग स्टूडेंट्स को समझ में आ गई ये चीज़. कैन यू टेल मी एनी अदर एग्जाम्पल? If P then Q and there is P, so we can say there is Q. Tell me some example of that thing which does not involve negation. जिस तरह से मैंने ले लिया था ना, गलत एग्जाम्पल एक ले ली मैंने, जिसमें नहीं पढ़ने वाली बात आ गई. नॉट P. यस प्लीज़. नहीं देखें मुतहर, आपने फिर वही मेरे वाली गलती कर दी ना. आपने भी नहीं से बात स्टार्ट कर दी. नहीं सोऊंगा अगर नींद नहीं आएगी तो नहीं को नहीं, सिर्फ सिंपल जैसे चलें मैं ही बताता हूँ. वही एग्जांपल अभी जो मैं ले रहा था, बादल होंगे तो बारिश होगी. अगर मैं ये कह रहा हूँ बादल होंगे तो बारिश होगी, और मैं ये भी कहता हूँ कि बादल हैं, तो इसका मतलब है कि बारिश भी है.
सही है, बादल होंगे तो बारिश होगी, बादल हैं तो ऑब्वियसली बारिश भी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई बादल हैं और बादल होंगे तो बारिश भी होगी, तो इसका मतलब है कि बारिश भी है। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ इन्फेरेंस। द मीटिंग इज अबाउट टू एंड इन 10 minutes, यू विल हैव टू रीज्वाइन, राइट। पानी पियेंगे तो प्यास बुझेगी, यस। और पानी आपने पी लिया है तो इसका मतलब है कि प्यास बुझ गई, देयर इज़ क्यू। अगर आप कह रहे हैं पानी पियेंगे और प्यास बुझेगी और साथ ही साथ आप कह रहे हैं एंड पी, यानी कि आपने पानी पिया है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब यही हुआ कि आपकी प्यास बुझ गई है, राइट। सूरज निकलेगा तो सुबह होगी, यस। हसान सलीम कह रहे हैं जब बारिश होती है तो पानी आता है, अच्छा जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, राइट। उसी को रेफ़र कर रहे हैं आई थिंक आप। तो यस एग्जैक्टली, अगर ज़्यादा बारिश होगी तो ऑब्वियसली इसका मतलब यही है कि ज़्यादा पानी आ गया है। अगर आप ये कहते हैं साथ ही साथ एंड लगा के कि अगर ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा, राइट। अच्छा, रिजवान वसीर इसी चीज़ को थोड़ा सा एलाबोरेट भी कर रहे हैं कि प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, राइट। और प्यास लग रही है तो इसका मतलब है कि पानी पीना है। सो आई थिंक यू गेट द आइडिया। और इसी तरह की चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे सारी सारी अगले सारे रूल्स के अंदर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। मॉडस पोनेंस को तो हमने समझ लिया, अब अगले रूल की तरफ आते हैं, दैट इज, कम ऑन, नेक्स्ट, राइट, एडिशन। द रूल ऑफ एडिशन, अगेन a rule of inference. Obviously, because this is a rule, it is supposed to be a tautology, it is supposed to be always true. And this is telling you if there is P, then either there is P or there is Q. If there is P, so either there is P or there is Q, right? इंटुइटिवली का बेसिकली मकसद ये होता है कि ये तो हमें बात समझ में आ ही जानी चाहिए, ये तो एक ट्रिवियल बात है। इंटुइशन को अगर हम देखें, अगर हम सिंपल वर्डिंग को देखें, सो इंटुइटिवली इफ वी नो दैट P इज ट्रू, वी कैन कंक्लूड दैट इधर P और Q आर ट्रू, या फिर बोथ, राइट। अच्छा, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इस एरो को आप चेंज करके देयर फोर भी लिख सकते हैं, जो कि इन माई ओपिनियन ज़्यादा बेहतर तरीका नहीं है। इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड इन लाइक दिस एज फार एज लॉजिक इज कंसर्न्ड। सो वी कंक्लूड दैट इधर P इज़ ट्रू और Q इज़ ट्रू, या फिर बोथ ट्रू है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये एग्जाम्पल देखें, दिस इज P, ठीक है, अगेन दिस इज P and this is Q. So what am I saying? I am saying that I read the newspaper today. Therefore, I read the newspaper और I ate custard. यही बात, P है, इसका मतलब ये हुआ, यानी कि if P then क्या होगा, P है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो P है या Q है, ठीक है। एक बात ज़रा यहाँ पर नोट कीजिएगा, इसको थोड़ा और डिटेल में जाने से पहले, कि दिस इज़ P और Q, नॉट एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और नहीं है यहाँ पे। एक्सक्लूसिव और होता तो वो ये कहता कि बोथ नहीं हो सकते, या तो P होगा या Q होगा, लेकिन ये सिंपल और है। इस सिंपल और के केस में P और Q दोनों भी हो सकते हैं। एक्सक्लूसिव और के केस में P और, अगर जॉर होता है यहाँ पे, P जॉर यानी एक्सक्लूसिव और Q होता, तो फिर P और Q दोनों में से कोई एक ट्रू होता तो ट्रू होता, वरना ये चीज़ ट्रू नहीं होती, दोनों कभी ट्रू नहीं हो सकते थे। बट दिस इज सिंपल आर। So what am I saying? If there is P, then either there is P or there is Q or there are both, right? Simply मैं ये कह रहा हूँ कि this chair is red, इसका मतलब ये हुआ, यानी कि then अगर एक चेयर रेड है तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो चेयर रेड है या वो चेयर येलो है, ये बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं कहता हूँ कि एक डोर ब्लू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो डोर ब्लू है या वो डोर येलो है। समझ में आ रही है ना बात? इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं, कोई 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 ऐसी सिचुएशन भी है जो जिसमें ये ट्रू ना हो। नहीं, इट इज़ अ टोटोलॉजी, इट इज़ ऑलवेज ट्रू कि अगर P होगा तो इसका मतलब है कि P और Q भी होगा क्योंकि P है। अगर P है तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ ट्रू हो जाएगी।
क्योंकि और के केस में p ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रू है ऑलरेडी, वी ऑलरेडी नो दैट दिस इज ट्रू, देन दिस इज गोइंग टू बी ट्रू, इफ दिस then this, if this is not then this is not, obviously. But again, not going into not thing, it's going to complicate thing. Just understand it like this: if there is p, then there is either p or q or both. अच्छा चलें, इसको ऐसे समझें, रिजवान वसीर का थोड़ा सा एक क्वेश्चन आया है, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ. इट्स बेसिकली सेइंग that if p is true then p or q is true. If there is this, then there is this. If p is true, then p or q is true. Now how can we say that? इसी डोर वाली एग्जांपल को लेते हैं. If I say कि p का मतलब ये है, I think I will have to use notepad for that. थोड़ा सा हम रुक रुक के समझ लेते हैं. If I am saying p का मतलब मैं ये कहता हूँ कि डोर इज ब्लू, और q का मतलब ये है डोर इज येलो. सो अगर मैं ये कहता हूँ कि p है ट्रू, p एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि p और q भी एग्जिस्ट करता है. ये है बेसिकली टोटोलॉजी हमारी जो ऊपर लिखी हुई है. कहने का मतलब ये है, p का मतलब क्या है, डोर इज ब्लू. इफ डोर इज ब्लू, देन ईदर द डोर इज ब्लू और द डोर इज येलो. ये चीज ट्रू हो जाएगी. क्यों ट्रू हो जाएगी? क्योंकि डोर ब्लू है और ये चीज भी ट्रू है. सो अगर ये चीज भी ऑलरेडी नो कि ट्रू है, तो अगली चीज के ऊपर तो हमें जाना ही नहीं है ना, और लगा हुआ है. अगर वी ऑलरेडी नो फ्रॉम आवर प्रेमिस कि p ट्रू है, तो इस p का ट्रू होना भी जाहिर सी बात बनता है. और अगर इस p का ट्रू होना बनता है, तो और के बाद कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. सो अगर हम ये सोचें कि क्या एक डोर ब्लू भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है, तो नो. in our discrete mathematics, a thing can either be one thing or the other thing, not both. Specifically in this or. So door blue है. एक मिनट के लिए सोचें कि भाई ब्लू डोर है, और अब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ पहले आप उसको आइडेंटिफाई करें और फिर सोचें. अपने जहन में ये बिठा लें कि डोर ब्लू है, राइट. अब मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर डोर ब्लू हुआ, तो इसका मतलब ये है कि या तो डोर ब्लू है या डोर ग्रीन है. नाउ दिस इज ट्रू, ऑब्वियसली सही कह रहा हूं मैं, मैंने कोई गलत बात नहीं कही. और हम सोचें अगर कि डोर ब्लू है, यस, तो ऑब्वियसली या तो डोर ब्लू है या डोर ग्रीन है. एंड यस, द डोर इज ब्लू. यस, इट इज और, मैंने वी लिखा है, इट इज बेसिकली और को इसी तरह मेंशन करते हैं, मैं और किसी तरीके से नहीं लिख सकता इसको. राइट. सो दिस इज द अदर रूल ऑफ इन्फेरेंस. इफ देयर इज p, if the p is true, then p or q is going to be true. Right. Moving on to the next one, simplification. The rule of inference for simplification states, again it is a tautology, and what tautology can represent the simplification rule? It is this. And I want you to understand this on your own and tell me an example of that. Want you to understand it on your own, take a couple of minutes and then tell me an example of that in real world. अच्छा स्टूडेंट्स, वी जस्ट गॉट रिकनेक्टेड आई थिंक. यस. तो अगर आपने इससे पहले कोई चैट लिखी थी तो वो रिमूव हो गई होगी, अब आप दोबारा से आपको सेंड करना पड़ेगा. सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि इस टोटोलॉजी को आप समझें और एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल में मुझे बताएं कि p की वैल्यू क्या रखूं, q की वैल्यू क्या रखूं, और किस तरह से पढ़ूं इंग्लिश में कि ये चीज़ ट्रू हो जाएगी. डोंट यूज़ p एंड q. आसान सलीम ने जवाब भेजा तो है, लेकिन वो p और q की शक्ल में. नो, टेक एन एग्जांपल एंड देन सेंड मी द आंसर. जी जनाब. So a lot of a few answers, but a few among those few are a few interesting.
रिजवान वसीर का जवाब है विच इज़ अ रॉन्ग आंसर रिजवान. यू इन्वॉल्व अर्थमेटिक इन बिटवीन. अर्थमेटिक नहीं, आई आई टोल्ड यू इंग्लिश लैंग्वेज में मुझे पता है, आम तौर पे जो बातें हम करते हैं उनमें से मुझे समझाएं. दैट इज़ अप टू यू. अब जैसे आप कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं 3 × 2 = 6, इसका मतलब है 2 × 3 = 6. नहीं, मैं नहीं मानता, इसको प्रूव करें. कौन कहता है ऐसा होगा? देन यू विल प्रूव बाय यूजिंग सम कम्यूटेटिव लॉस और इस तरह की चीज़ें. सो मैथमेटिक्स को फिलहाल इन्वॉल्व ना करें, जस्ट बी कैजुअल इन दिस थिंग. सो इफ़ देर इज़ पी एंड देर इज़ क्यू देन ऑब्वियसली देर इज़ पी. जिस तरह अगेन डोंट को भी इस्तेमाल ना करें, इट विल गेट कन्फ्यूजिंग. लाइक इन अर्लियर एग्जांपल इट गॉट अ लिटिल कन्फ्यूजिंग दैट यू डोंट स्टडी. इफ़ यू डोंट स्टडी यू विल फेल. आई एम जस्ट गोइंग टू पिक सम अ कपल ऑफ एग्जांपल्स जो कि थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर हैं इस रूल ऑफ इन्फेरेंस को समझने के लिए. नंबर वन इज़ मोहम्मद अनस ने भेजी है. मोहम्मद अनस ये कह रहे हैं कि इफ़ इट इज़ रेनिंग एंड द फ्लोर इज़ वेट देन ऑब्वियसली इट इज़ रेनिंग. यानी अगर हम पी को ये कहते हैं कि इट इज़ रेनिंग, पी का मतलब है इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, एंड क्यू को हम कहते हैं द फ्लोर इज़ वेट. तो अगर बारिश हो रही है और फ्लोर वेट है तो इसका मतलब यही है कि बारिश हो रही है. ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज हो गया, ये एंड आ गया इस दफ़ा, एंड दिस इज़ पी. राइट. सो इफ़ पी एंड क्यू देन पी. अगर बारिश हो रही है और फ्लोर गीला है तो इसका मतलब है कि बारिश हो रही है. यहाँ तक बात ख़त्म हो गई है. अगर बारिश है और फ्लोर गीला है, ये दोनों चीज़ें अगर ट्रू हैं, इसका मतलब यही हुआ कि बारिश भी हो रही है, और फ्लोर भी गीला है तो इसका मतलब यही हुआ कि बारिश हो रही है. सिमिलरली एक दूसरी एग्जांपल आई है फ्रॉम शाहजेब जैन. ही इज़ सेइंग कि पी को हम कहते हैं, कहाँ गया, पी को हम कहते हैं कराची इज़ इन फाइनल, एंड क्यू को हम कहते हैं लाहौर इज़ इन फाइनल. सो अगर कराची इज़ इन फाइनल भी ट्रू है, लाहौर इज़ इन फाइनल भी ट्रू है, तो इसका मतलब है कि कराची इज़ इन फाइनल ट्रू है. ठीक है. सो अगर ये दोनों चीज़ें कम्प्लीटली ट्रू हैं तो इसका मतलब है कि पी भी ट्रू है. क्यों? क्योंकि दोनों के दरमियान एंड है. सही. अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर यहाँ पे और होता कि पी या क्यू ट्रू है तो इसका मतलब है कि पी ट्रू है, तो अब ये चीज़ टोटोलॉजी नहीं है, ये चीज़ गलत है. आप गारंटी से नहीं कह सकते कि भाई अगर पी और क्यू ट्रू है तो पी भी ट्रू है. नहीं हो सकता, सिर्फ क्यू ट्रू हो, पी ट्रू ना हो, तब भी तो ये सारा ट्रू ही होगा. कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जब पी ट्रू हो, उसकी वजह से सारा ट्रू हो, तो आप कह सकते हो पी ट्रू है. लेकिन पी के ट्रू होने की गारंटी आप सिर्फ तभी दे सकते हो जब पी एंड क्यू पूरा ट्रू हो. सो अगर पी एंड क्यू पूरा ट्रू है तो इसका मतलब है कि पी भी ट्रू है. अंडरस्टूड? ठीक है. लाइट है, सफदर हुसैन कह रहे हैं लाइट है तो वाईफाई ऑन है, इसका मतलब है कि लाइट है. राइट, गुड, ये भी सही एग्जांपल है. सो अगर वाईफाई ऑन है और लाइट भी है तो इसका मतलब है कि लाइट है. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि रूल्स ऑफ इन्फेरेंस ऑफ सिंप्लीफिकेशन में हम यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, इसकी एक एग्जांपल भी है. फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ कि प्रूव करो ये कि ये चीज़ अगर है तो इसका मतलब है ये भी है. व्हाट इज़ द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज़ प्रूव करें कि अगर ये है तो ये है. इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड लेट्स ट्राई टू राइट इट ऑन नोट पैड. जितना हो सके हम लिखते हैं इसको और बाकी चीज़ों को हम रेफ़र करेंगे. देयर, हियर इट इज़. ये हमने प्रूव करना है. ग्रेटर देन और इक्वल टू है बेसिकली ये. ठीक है, आपको पता है ये साइन किस तरह से काम करती है. तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये है तो इसका मतलब है ये भी है. पहली बात तो ये कि हाउ इज़ दिस अ रूल ऑफ इन्फेरेंस ऑफ सिंप्लीफिकेशन. ये इसकी प्रूफ किस तरह से, इसका क्वेश्चन किस तरह से, हाउ कैन दिस बी रिटन एज दिस. क्या ये इस तरह लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ. सबसे पहली बात यही है कि ये ऐसे लिखा हुआ है. क्यों? क्योंकि क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जो ये वाली चीज़ है मैं इसको उठाता हूँ सिर्फ और सिर्फ, पहले सिर्फ इसको उठा रहा हूँ. इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ कैसे कि x इज़, ये चलें, 0 इज़ लेस दैन x एंड x इज़ लेस दैन 10.
इसकी ये वाले स्पेसेस में मिटा देता हूँ। ये लॉजिकल कनेक्टिव है, ये एक चीज़ है, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। कोई भी मैंने चीज़ गलत नहीं की अभी तक, कोई भी चीज़ मैंने ऐसी नहीं की जो कि रूल्स के ख़िलाफ़ हो। ये रूल आपको पता होगा, ये इस चीज़ को अगर मैं लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई इसमें फ़र्क नहीं। ये चीज़ यहाँ पर भी यही हो रही है। क्यों लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसा? बिकॉज, नॉट आस्किंग यू, many of you might have already understood, just elaborating it, because this is writing that 0 is less than x and x is less than 10। यहाँ पर एंड पढ़ा जाता है जब भी इस तरह की स्टेटमेंट लिखी हो अर्थमेटिक या मैथमेटिक्स में। 0 इज़ लेस देन एक्स, एक्स इज़ लेस देन 10। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड x इज़ लेस देन 10। ये चीज़ें आपको तब बेहतर समझ में आएंगी जब आपको ग्रेटर देन और लेस देन की साइन सही से समझ में आती हो। ग्रेटर देन और लेस देन की साइन सिर्फ, लेस देन की साइन सिर्फ ये नहीं बता रही होती कि क्या चीज़ छोटी है, बल्कि ये भी बता रही होती है कि क्या चीज़ बड़ी है। इसी तरह ग्रेटर देन की साइन सिर्फ ये नहीं बता रही होती हमें कि क्या चीज़ बड़ी है, बल्कि ये भी बता रही होती है कि क्या चीज़ छोटी है। तो इस साइन को अगर मैं देखूँ, सिंपल एक रूल अप्लाई होता है, बड़ा एक नॉर्मल सा रूल है, टिपिकल सा रूल है। वो ये है कि आपको जो भी साइन नज़र आ रही है, इट इज़ बेसिकली लेस देन साइन। ठीक है, ग्रेटर देन साइन ये है, बट दीज आर दीज आर ओनली चेंजिंग डायरेक्शंस। एक्चुअली बात ये दोनों एक ही बता रही होती हैं कि भाई जिसकी तरफ पॉइंट किया जा रहा होता है ना, इस साइन का पॉइंट जिस तरफ होता है वो चीज़ छोटी होती है, और जिस तरफ इसका इसका पॉइंट नहीं होता बल्कि दोनों चीज़ें ओपन हैं, दोनों माउथ्स ओपन हैं इसके, वो चीज़ बड़ी होती है। तो कोई भी साइन आप उठा लें, चाहे लेस देन की या ग्रेटर देन की, वो हमेशा ऐसे ही काम करती है। तो अगर मैं कहता हूँ इस साइन को मैं पढ़ता हूँ 0 इज़ लेस देन एक्स, तो इसको मैं 0 इज़ लेस देन एक्स क्यों कह रहा हूँ, ग्रेटर देन एक्स क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि 0 इज़ लेस देन, पॉइंट लेस की तरफ जाता है। इसी तरह इसको मैं x इज़ ग्रेटर देन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि x की तरफ पॉइंट नहीं हो रहा, पॉइंट लेसर की तरफ हो रहा होता है। इस चीज़ को मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूँ 0 इज़ इक्वल टू और लेस देन x, राइट। सो ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए थी, आई जस्ट रिमाइंडेड इट। सो इस चीज़ को मैं ऐसे पढ़ता हूँ कि x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 10। x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 10। और इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर अलग अलग करके लिखा है कि x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड x इज़ लेस देन 10। अब इस चीज़ को 0 इज़ लेस देन x को मैं लिख सकता हूँ x इज़ ग्रेटर देन 0। इसमें कोई कोई गलत बात नहीं है, वही बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पर भी इसका फेस x की तरफ था, यहाँ पर भी इसका फेस x की तरफ है। यहाँ पर इसकी नोक 0 की तरफ थी, यहाँ पर भी इसकी पिन जो है वो 0 की तरफ है। तो अभी तक मैंने कोई बात गलत नहीं कही है, सब चीज़ें मैंने सिर्फ ओपन करके लिखी हैं। हाँ, इसके बाद अभी ये वाली चीज़ जो हुई है इसको मैंने एलॉबरेट करके ऐसे लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि नॉट जस्ट दिस जो कि सवाल में था, बल्कि अब मैं ये बात कह रहा हूँ जो कि एक ही बात है, कोई गलत बात नहीं है इसमें। x इज़ लेस ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 10, देन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी मैं यही कह रहा हूँ x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड x इज़ लेस देन 10, देन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मैं अपना प्रूफ स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली आई वांट टू प्रूव इट कि ये चीज़ क्यों ट्रू है, क्यों आखिर हम कहते हैं कि दिस इज़ अ टोटोलॉजी, क्यों आखिर ये हमेशा ट्रू है कि p एंड q होगा तो p भी होगा, क्यों होगा देखते हैं। अच्छा, पहली पहली बात ये कि इस चीज़ को जो कि अब अगर यहाँ पर आप देखो x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड x इज़ लेस देन 10, देन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको क्या मैं इस चीज़ को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ p की वैल्यू है x ग्रेटर देन 0। ठीक है, दिस इज़ योर p, एंड q की वैल्यू है x लेस देन 10। यानी कि टिपिकली मैं ये कह रहा हूँ कि इफ़ ये p हो गया एंड ये q हो गया, देन क्या होना चाहिए यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू दिस क्या होना चाहिए यहाँ पे?
P, गुड. सो देयर शुड बी P. अब इसको मैं इसी फॉर्म में भी अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ P एंड Q देन P. वही एग्जैक्टली चीज़, P एंड Q. थोड़ा सा उसको इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अंदाज़ा हो जाए हमें कि हम वही काम कर रहे हैं. देन P, P and Q and then P. But there is an issue here. The problem is that this is P. If P is x greater than 0 and Q is x less than 10, then there should be P, यानी कि x greater than 0, not x greater than or equal to 0. ये issue है. This is not P. This is again R. Right? So ये P तो नहीं है. इसका मतलब है कि यहाँ पर मुझे ये दो चीज़ें मैंने गलत लिख दी हैं. तो इन दो चीज़ों को मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ. इसको ऐसे समझें कि मैं लाइक यू यूज़ इन सी में इनको कमेंट कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं कि ये क्या कह रही हैं. बट हमें इतना अंदाज़ा है कि हमारा कोड इस सिचुएशन में, हमारी हमारी प्रूफ इस सिचुएशन में आ चुका है कि इट इज़ समथिंग ऑफ अ सिंप्लीफिकेशन. इफ़ पी देन क्यू देन पी. बस इसको मुझे पी की शक्ल देनी है या फिर इसको पी की शक्ल देनी है. ठीक है, तो इसके लिए अब मैं नेक्स्ट स्टेप पर आता हूँ. और नेक्स्ट स्टेप में ये कह रहा हूँ, अच्छा इसको भी मैं कमेंट में डाल देता हूँ फ़िलहाल. इन सारी चीज़ों को हम फ़िलहाल इग्नोर कर रहे हैं कि ये क्या है. ठीक है. सो इस स्टेप के बाद अब मैं ये कहता हूँ कि अगर x ग्रेटर देन 0 है, अगर x ग्रेटर देन 0 है जो कि p है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये होता है कि या तो x ग्रेटर देन 0 है या फिर x इक्वल टू 0 है. ये बात सही लिखी है या नहीं? यस और नो में मुझे जवाब दें. एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है मैंने. इस चीज़ का पीछे उससे कोई चीज़ कह नहीं रही कि इसको ऐसे लिखें, लेकिन मैंने लिखा है. लेकिन क्या सही लिखा है या नहीं? राइट, इट इज़ करेक्ट. एंड वाई इट इज़ करेक्ट? हम कह रहे हैं कि अगर ये ट्रू है, x ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है या तो x ग्रेटर देन 0 है या फिर x इक्वल टू 0 है. तो यस, इट इज़ ट्रू. अगर इन दोनों में से कोई एक ट्रू हो गया तो ये ट्रू है ना, और इन दोनों में से एक ट्रू है, विच इज़ दिस. एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट सेम रूल दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड दैट इज़ द रूल ऑफ एडिशन. अगर p है तो इसका मतलब है या तो p है या q है. यह भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, और अब हम इसके बाद सिंप्लीफिकेशन पर आ गए हैं और हम यही काम कर रहे हैं कि अगर p है तो इसका मतलब है कि या तो p है या q है. यानी कि ये जो हमने काम किया है ये वही रूल ऑफ एडिशन अप्लाई किया है हमने. ठीक है. अब इसके बाद मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ये कहते हो कि ये ट्रू है तो इसका मतलब है कि या तो ये ट्रू है या ये ट्रू है. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर, अब इस पर गौर करें ज़रा. x इज़ ग्रेटर देन 0 या फिर x इज़ इक्वल टू 0. इन दोनों चीज़ों को अब मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ. अगले स्टेप में मैं जाता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि ये जो चीज़ अब प्रूव हो गई है, ये ट्रू है ना, ये हमें पता है ट्रू है, ये हमें पता है, स्टार्टिंग से पता है ये चीज़ ट्रू आ रही है. तो अगर ये चीज़ ट्रू है तो इसका मतलब है कि ये चीज़ भी ट्रू हुई. और इस चीज़ को जो कि मैंने अभी सेलेक्ट की है, इसको मैं लिख सकता हूँ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की तरह. इस चीज़ को जो कि अभी मैंने प्रूव की बाय द रूल ऑफ एडिशन कि ये चीज़ सही है, क्योंकि ये सही है इसलिए ये भी सही है, इस चीज़ को मैं लिख रहा हूँ अब इस तरह. और इस पे भी मुझे अब आपका जवाब चाहिए, विच शुड बी यस. के बात समझ में आ गई यहाँ तक कि इन इन जिस चीज़ों को जो कि मैंने अभी प्रूव किया है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. सही हो गया ना? इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ.
इसका मतलब ये हुआ, अब मैं इस स्टेप को उठाता हूँ और अगर मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, तो इसका मतलब है कि मैं इस स्टेप को मैं बजाय इसके कि ये लिखूँ कि एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इसका मतलब है कि या तो ये या तो ये। अगर ये पूरी चीज़ जो कि मैंने अभी सेलेक्ट की है ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब है कि मैं इस पूरी चीज़ की जगह ये लिख सकता हूँ। राइट? फॉलो कर रहे हैं? सो अगर मैं इस पूरी चीज़ की जगह ये चीज़ लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये है तो ये है। अगर x ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि या तो x ग्रेटर देन ज़ीरो है या फिर x लेस देन ज़ीरो है। समझ आ रही है ना बात? अगर x ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि या तो x ग्रेटर देन ज़ीरो है या फिर x लेस देन ज़ीरो है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमने बात शुरू कहाँ से की थी। इसको अगेन इग्नोर करें, जो मैंने सेलेक्ट किया उसको इग्नोर करें। हमने बात शुरू कहाँ से की? हमने कहा कि ये चीज़, कर्सर को फॉलो करें, ये चीज़ तब होगी जब ये होगा, और ये चीज़ तो है। यहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी, अगर ये है और ये है तो इसका मतलब है ये है। ये हमने प्रूव करना था और हम इसके प्रूफ पर पहुँच चुके हैं। हमने स्टार्ट यहाँ से किया, हमने कहा चले हम इसको उठाते हैं। ये चीज़ आप कह रहे हैं ना कि है एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड एक्स इज़ लेस देन 10। चले बात यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि ये भी है। अब ये जो चीज़ मैंने लिखी थी ना, जो मैंने सेलेक्ट की हुई, इसको मैं कह रहा था इग्नोर करें, इसको अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ विदाउट कमेंट। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि अब यहाँ पर मेरे पास P जो है वो प्रूव हो चुका है कि अगर ये है तो इसका मतलब है कि ये भी है। सो वी जस्ट प्रूव्ड दिस। अगर x ग्रेटर देन ज़ीरो है और x लेस देन 10 है, इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है। तो हमने ये प्रूव कर दिया। इस चीज़ को हम लेकर चले, हमने बात यहाँ से स्टार्ट की कि x ग्रेटर देन ज़ीरो, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो और ये होगा और ये होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है। इसका मतलब है कि अगर ये चीज़ ट्रू है तो फिर ये चीज़ भी ट्रू होगी, और साथ ही साथ इसका भी ट्रू होना लाजमी है, जो कि है। तो ये चीज़ और ये चीज़ अगर है तो वी कैन से कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है। इसमें हमने मुख्तलिफ़ तरह के रूल्स का सहारा लिया बीच में, और मुख्तलिफ़ तरह के रूल्स जो थे वो यहाँ ये वही प्रूफ लिखा हुआ है, स्टार्टेड बाय दिस। हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको इसके अंदर फिर हम x ग्रेटर देन ज़ीरो को हम उठाते हैं और हम ये कहते हैं x ग्रेटर देन ज़ीरो एंड x लेस देन 10 है, तो इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन ज़ीरो भी है। दिस इज़ द रूल ऑफ सिंप्लीफिकेशन। अगर p एंड q है तो p भी है। ठीक है। फिर हमने बाय एडिशन के तौर पे हमने x ग्रेटर देन ज़ीरो को तोड़ा। हमने कहा कि x ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसका मतलब है या तो x ग्रेटर देन ज़ीरो है या इक्वल टू ज़ीरो। ये एडिशन का रूल अभी हमने देखा। और फिर हमने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो भी है, विच वॉज सपोज टू बी प्रूवन। QED बेसिकली एक लैटिन टर्म है। अ, मतलब तो इसका मतलब इसका हमें पता है, बट इसकी जो प्रोनाउंसिएशन इट इज़ समथिंग लाइक क्वे एस्ट डिटर्मिनिस्टिक और समथिंग लाइक दैट। बट इसका मतलब ये है कि विच वॉज सपोज टू बी प्रूवन, विच वॉज सपोज टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड, यही तो आपने पूछा था। सो एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो अगर मैं ले आया तो इसका मतलब है कि बात प्रूव हो गई। वी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर एंड वी एंडेड इट हेयर, विच मीन्स कि दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। इफ दिस थिंग इज ट्रू देन दिस थिंग इज ट्रू। So we proved that if this thing and this thing is true, then this thing is true. Understood? Moving on to the next type of rule. अब बाकी रूल्स में हम एग्जांपल्स या उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। बस आपसे कुछ एग्जांपल्स में पूछूंगा। यही एक चीज़ थी जो कि हम डिटेल में जाना चाह रहे थे, जिसकी द अदर रूल ऑफ इन्फेरेंस इज मॉडस टॉलेंस। इट इज़ सिमिलर टू मॉडस पोनेंस एंड मॉडस पोनेंस वाज व्हाट? याद है किसी को? ऑब्वियसली याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं है। देखते हैं हम क्या था। दिस वॉज मॉडस पोनेंस, सॉरी, एंड इट इज़ सेइंग, अच्छा बीच में एक रूल रह गया, कंजंक्शन हम पढ़ना भूल गए। तो पहले कंजंक्शन को देख लेते हैं, उसके बाद आगे मॉडस टॉलेंस की तरफ चलते हैं। द कंजंक्शन इज़ ऑलमोस्ट ट्रिवियली इंट्यूटिव। ये हमेशा से ऐसी चीज़ है जो कि हमें समझ में आती है। बस इसको लिखने का तरीका एक आ जाता है हमारे पास। इट इज़ बेस्ड ऑन, ये इसकी टोटोलॉजी है। दिस इज़ द रूल ऑफ कंजंक्शन। इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि नीचे लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगी, और डिटेल में नहीं जाते हैं। मॉडस टॉलेंस की तरफ चलते हैं।
यस या नो में बता दीजिएगा बात समझ में आ गई है या नहीं। ये बेसिकली ये बता रहा है कि अगर ये पी देखें ब्रैकेट में है और ये क्यू भी ब्रैकेट में है, लेकिन देन के बाद वाली चीज़ें ब्रैकेट में नहीं है, इट इज़ टेलिंग यू, साथ साथ अगर सुन लेंगे एक ही बार में समझ आ जाएगा। अगर p एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एज एन इंडिपेंडेंट थिंग in a bracket, which means it is independent, if p in itself is true, q in itself is true, and there is and between them, then that means that whole p and q is true. सही है। अगर मैं आपको एक और लेक्चर दिखाऊं, और बल्कि आई थिंक उस पर ही चले जाते हैं, आपको थोड़ा सा क्लियर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी वो चीज़ समझने में। किस में पढ़ रहे थे हम? प्रीडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स, लॉजिक पे थे शायद, फर्स्ट लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर पर जाते हैं। फर्स्ट लेक्चर में दिस थिंग, इसको ज़रा देखें। लॉजिकल एंड हम पढ़ रहे थे ना, हमने कहा था भाई लॉजिकल एंड एक चीज़ होती है दोनों चीज़ों के दरमियान, अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर फॉल्स, अगर दोनों दोनों ट्रू होंगी तो सिर्फ ट्रू होगा, वरना ट्रू नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड में आई थिंक इसकी दी हुई थी वैल्यूज़, ये देखें पी एंड क्यू की वैल्यूज़, दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू होगा, वरना ट्रू नहीं होगा। कोई एक भी अगर फॉल्स है तो फॉल्स होगा, ये तो हमें पता है, एंड पे ऐसे ही चलता है। ये जो एंड है ना, लॉजिकल एंड, इसको कहा जाता है कंजंक्शन। और यही चीज़ यहाँ पर एक रूल ऑफ इन्फेरेंस का नाम भी है, कंजंक्शन, विच इज़ बेसिकली टेलिंग अस द रूल ऑफ एंड। एंड कैसे होता है बस ये बता रहा है, जो कि हमें ऑलरेडी पता भी था, बट यहाँ पर एक्चुअली इसको एलॉबरेट ये इस तरह से कर रहा है कि अगर P खुद ट्रू है, Q खुद ट्रू है, और उसके ऊपर आप एंड लगाते हैं, तो जो पूरी P एंड Q की वैल्यू है वो भी ट्रू होगी। इफ दिस देन दिस, इफ दिस इज योर प्रेमिस देन दिस इज गोइंग टू बी योर प्रेमिस। अगर P भी है और Q भी है, इसका मतलब है कि P और Q है। ठीक है, अगर P भी है और Q भी है, इसका मतलब है P और Q है। अगर आपको बुखार भी है, आपको ज़ुकाम भी है, इसका मतलब है कि आपको बुखार और ज़ुकाम है। ये कहने का मतलब है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं अज़हरुद्दीन? माइक ओपन करवाना चाह रहे हैं, मैसेज कर दें मुझे, या वैसे ही गलती से रेज एंड हो गया? राइट, सो दिस इज दैट इज योर लॉजिकल कंजंक्शन, जो कि एंड पे आपने कहा था। अब आते हैं मॉडस टॉलरेंस के ऊपर। एंड मॉडस टॉलरेंस को समझने के लिए हम ज़रा इसको लिखना चाह रहा था साथ, मॉडस पोनेंस को भी। इट इज़ बेसिकली एंड this is implication, and this is also implication. This was your modus ponens, and now we are moving towards modus tollens here. Now compare both of them. Both of them are similar, ये चीज़ और ये चीज़, right? Meeting is about to end in 10 minutes. You will have to rejoin. अजहरुद्दीन कह रहे माइक ओपन कर दें। ठीक है, 1 मिनट। यस प्लीज़ बात करें। सर अस्सलाम वालेकुम सर। अभी सर टीचर इस्लामाबाद टीचर की भी सर क्लास हो रही है सर। वो टीचर कह रही है कि एक साथ दो क्लासों का क्रैश हो रहा है, तो सर आप टाइम टेबल को थोड़ा देख ले सर। टाइम अभी भी मिस टेबल क्लास ले कौन सी क्लास हो रही है इस्लामियत की अभी आपकी? सर, इस्लामाबाद की होगी।
यस सर, इस्लामिक किसने की भी कहा हो रही सर। इस्लामिक की क्लास होगी इस वक्त? ये देखिए सर, ये अभी आवाज़ आ ही रही है सर। नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आप उनसे, वो नहीं, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ क्यों हो रही है, पिछली पिछले सेमेस्टर पिछले वीक भी हुई थी क्या? सर पिछले वीक सर 10:30 से 12 बजे ही हुई थी, लेकिन सर वो मिस कर रही थी कि पुराने टाइम टेबल के हिसाब से मेरी जो टाइमिंग है वो 12 से 1:30 ही है। तो आप प्लीज सर देख ले सर। पुराने टाइम टेबल के मुताबिक क्यों हो रही हैं? आपको आपको क्या बताया गया, कौन से टाइम टेबल के मुताबिक आपकी क्लासेस होंगी? सर पुराने टाइम टेबल, पुराने आईडी के हिसाब से सर हमारी क्लासेस। पुराने का मतलब क्या है? पुराने भी 15-20 हैं, आप कौन से पुराने की बात कर रहे हो? जो वो भी आपका इतने टाइम सारे में टेबल, सब। आप बस ये समझें कि जो आपका टाइम टेबल यूनिवर्सिटी में भी चल रहा था ना, हाइब्रिड टाइम टेबल जो चल रहा था, उसी के यस यस मुताबिक सर। क्लासेस होंगी। बस जो फिजिकल आ रहे थे ना स्टूडेंट्स, अब उनको भी ऑनलाइन कर दिया है हमने बस। आपकी सर मैं कोई वो आप टाइम आगे टेबल। इसको क्या कन्वर्ट करूँ सर, आप आगे मैं इसको क्या कन्वर्ट करूँ सर, मैं आगे क्या बोलूँ मिस को आप टीचर को। बता दें, मैम को बता दें कि वो टाइम टेबल शायद वो गलत समझ रही हैं। टाइम टेबल वही अप्लाई होगा जो अभी फिजिकल में अप्लाई हो रहा था, और उसी तरह से ओके आपकी सर, बस क्लासें होंगी, उन्हीं आईडीज़ के थ्रू क्लासेस होंगी। राइट। सो ये थैंक कम्युनिकेट कर दें थैंक काइंडली, यू और सर। आगे से भी ऐसा ही होगा। ओके। ओके सर। ओके। यस एग्जैक्टली वली, जो करंट टाइम टेबल है वही होगा। सो हमारी क्लास 12 to 2 होती थी, तो हम 12 to 2 ले रहे हैं। आई थिंक मैम को शायद कन्फ्यूजन हो गई, वो पिछले से पिछले टाइम टेबल यानी कि ऑनलाइन के मुताबिक ले रही हैं क्लास में भी। ओके। So again, coming on to the basics of rules of inference of modus tollens. Now, modus tollens is saying the same thing that modus ponens was saying, but a little differently. A little differently, just a little differently. This thing is the same, which means the premise is the same. कि P होगा तो Q होगा, यहाँ पर भी देखें P होगा तो Q होगा, and that is AND. But the question is, the different thing here is कि हम कह रहे हैं Q नहीं है, यहाँ पर हम कह रहे थे P है। इसका कहने का मतलब ये था बेसिकली कि P है और P होगा तो Q होगा। इसका मतलब ये है कि Q है, P है, और P के होने से Q ने भी होना है, इसलिए Q भी है। यहाँ पर भी यही बात कही जा रही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंटली निगेशन आ गई है यहाँ पे। यहाँ पर ये कहा कह रहा है कि Q नहीं है और P होगा तो Q होगा। इसका मतलब ये है कि P नहीं है, Q नहीं है, और प्रीमिस वही है कि P होगा तो Q होगा। Q नहीं है, P होगा तो Q होगा, इसका मतलब है P नहीं है। क्योंकि अगर P होता तो Q भी होता, यही तो हमारी प्रेमिस है जो कि सेम है मॉडस पोनेंस की तरह। P होगा तो Q होगा, वो चीज़ सेम है। तो P होगा तो Q होगा, P है तो इसका मतलब है Q भी है, Q नहीं है तो इसका मतलब है कि P भी नहीं है। क्योंकि अगर P होता तो Q भी होता, दोनों एंड हैं। दिस इज़ योर मॉडस टॉलेंस। और इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल लेने की आई डोंट थिंक कि हमें ज़रूरत है। इट इज़ जस्ट द सेम थिंग, बट अंडरस्टैंड करने के लिए आपको थोड़ा सा इस पर सोचना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू कॉन्ट्रापॉजिटिव। अच्छा, ये जितने भी रूल्स हम देख रहे हैं, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू अगर आप इन सब रूल्स के जाकर वो बनाएं, ट्रूथ टेबल्स बनाएं, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के ट्रूथ टेबल बनाएं। फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, चारों जो आपके रूल्स बनेंगे ना, आप देखेंगे कि सब में ट्रू आ रहा है, कि ऐसा हमेशा ही होगा। तो थोड़ा सा एक मैथमेटिकली भी प्रूव हो जाएगी चीज़, आपके सामने प्रूव हो जाएगी यूजिंग ट्रूथ टेबल, कि वाकई ऐसा ही है कि दिस इज़ अ टोटोलॉजी एंड इट इज़ सपोज टू बी ऑलवेज ट्रू। नाउ कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्ट्रोपॉजिटिव की टोटोलॉजी क्या है? दिस, एंड दिस इज अ लिटिल मोर ट्रिकी देन द नेक्स्ट अप टू कम, जो कि अभी आने वाली है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बट कॉन्ट्रोपॉजिटिव इज सेइंग द सेम थिंग दैट इट वाज सेइंग इन मॉडस टॉलेंस। एंड व्हाट इट इज सेइंग, इट इज सेइंग कि P होगा तो Q होगा, वही प्रेमिस है जो इसकी थी, P होगा तो Q होगा। बट यहाँ पर ये क्या चीज़ अज्यूम कर रहा है, कंक्लूजन क्या निकाल रहा है इससे? कंक्लूजन ये निकाल रहा है कि भाई P होगा तो Q होगा, तो इसका मतलब ये है कि अगर Q नहीं है तो फिर P भी नहीं है, क्योंकि अगर P होता तो Q भी होता। राइट। सो कॉन्ट्रापॉजिटिव ये कहता है कि अगर P होगा तो Q होगा, इसका मतलब ये है कि Q नहीं है तो P भी नहीं है। P होगा तो Q होगा, इसका मतलब ये है कि Q नहीं होगा तो P भी नहीं होगा। राइट। सो
इसको यूज़ कब किया जाता है? इसको यूज़ तब किया जाता है जब आप पी को प्रूव ना कर सकें। आप पी को प्रूव ना कर पा रहे हो कि ये है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है, तो बजाय इसके कि आप पी को प्रूव कर रहे हैं, आप प्रूव करें, आप क्यू को प्रूव करना शुरू हो जाए। अगर आप क्यू को प्रूव कर देते हैं ना कि फॉल्स है, तो फिर पी भी फॉल्स जो है वो प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप पी को प्रूव कर देते हैं कि ट्रू है, तो ऑब्वियसली क्यू वैसे ही ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर आप पी को प्रूव नहीं कर पा रहे किसी भी तरीके से, आपको हेल्प नहीं मिल पा रही कि पी को कैसे प्रूव करूं, तो आप क्यू को प्रूव कर दें। अगर क्यू फॉल्स आ जाता है तो इसका मतलब है कि पी भी फॉल्स है, अगर क्यू ट्रू आ जाता है तो इसका मतलब है पी भी ट्रू है। सही है। नाउ देयर इज डिसजंक्टिव सिलोजिज्म, और ये सिलोजिज्म की दो टाइप्स हैं, एक है डिसजंक्टिव और एक है, कहाँ गई, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म एंड डिसजंक्टिव सिलोजिज्म, ये दो तरह के सिलोजिज्म है। एंड देन रेजोल्यूशन, बस ये तीन आखिरी रूल्स हमारे रह गए। Hypothetical syllogism is very simple, and again I will tell you to understand this, and tell me an example of this hypothetical syllogism in English language in our daily life, apart from the examples that are given. So over to you. Again I am saying don't use negation, don't का word use ना करें। if you don't do something then it won't happen, because यहाँ पर don't not वाली चीज़ नहीं है। these are some positive PQR, so stick with that please. अच्छा, आपके जो जवाबात आए थे उनमें से एक दो तो मैंने पढ़े थे, लेकिन आई थिंक कुछ और भी आए थे, लेकिन वो फिर रिकनेक्ट हो गए हम, तो चैट रिमूव हो गई। एक एक जो मुझे याद आ रहा है वो ये था कि आई थिंक किसी नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था कि अगर PSL होगा तो इसका मतलब है उसका फ़ाइनल भी होगा, और अगर PSL का फ़ाइनल होगा इसका मतलब है कि कोई जीतेगा, तो इसका मतलब है कि अगर PSL होगा तो कोई जीतेगा। इसी तरह मोहम्मद असद का अभी मेरे पास जवाब लिखा हुआ है, ऑल मैमल्स आर एनिमल्स, ऑल एलिफेंट्स आर मैमल्स, इसका मतलब है कि ऑल एलिफेंट्स आर एनिमल्स। ठीक है। सो ये भी एक तरीक़ेकार है। सो बेसिकली यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि इफ़ P implies Q एंड Q implies R, देन P implies R। अगर P के होने से Q होता है और साथ ही साथ Q के होने से R भी होता है, तो इसका मतलब है कि P के होने से ही R हो जाएगा, क्योंकि P के होने से Q होगा और Q के होने से R हो जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि P के होने से R हो जाएगा। दिस इज़ हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म एंड दिस इज़ डिसजंक्टिव सिलोजिज्म विच सेज कि P और Q में से अगर कोई भी होता है या दोनों भी होते हैं और P नहीं है, तो इसका मतलब है कि Q है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस। again I will need an example of that from you guys, apart from the examples that is given. It is basically saying कि अगर P और Q ट्रू है और P नहीं है, तो इसका मतलब है Q है, क्योंकि ये कब ट्रू होगा, जब दोनों में से कोई एक ट्रू हो, और साथ ही साथ एंड में आप ये बता रहे हो कि P नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर Q ट्रू होगा। द स्काई इज इधर ब्लू और ग्रे, इट इज़ इन ब्लू, सो ऑब्वियसली दिस इज ग्रे। इस तरह की कोई और एग्जांपल मुझे बताएं। अच्छा हन्नान, आपने जवाब काफ़ी इलाबोरेट दिया है, बट इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक है। हन्नान का जवाब ये है कि पी का मतलब है इट्स नोज आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ आई विल गेट एन ए, ये पी क्यू और आर है। सो इफ़ इट्स नोज देन आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ, इफ़ आई स्टडी डिस्क्रीट मैथ दैट आई विल गेट एन ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो कंक्लूजन निकाला है वो गलत निकाला है। कंक्लूजन बेसिकली इसका ये होगा कि इफ़ इट्स नोज देन आई विल गेट एन ए। ठीक है। राइट, अब आया है मेरे पास आपका कंक्लूजन, अगले मैसेज में आया है हन्नान। ओके, द कंक्लूजन इज़ नाउ राइट, इफ़ इट्स नोज दैट आई विल गेट एन ए, राइट। मोहम्मद असद, आई थिंक आप नेक्स्ट वाले का बता रहे हैं। अगर कोई साइंस और लॉ पढ़ने जा रहा है, तो अगर वो लॉ नहीं पढ़ने जा रहा तो डेफिनेटली वो साइंस पढ़ने जा रहा है। यस एग्जैक्टली, अगर कोई साइंस पढ़ रहा है या फिर लॉ पढ़ रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि वो लॉ नहीं पढ़ रहा, तो ऑब्वियसली वो साइंस पढ़ रहा है। दिस इज़ योर डिसजंक्टिव सिलोजिज्म, एंड ऑब्वियसली दिस इज़ अगेन अ टोटोलॉजी, P और Q एंड नॉट P, देन दैट मीन्स देयर इज़ Q।
पे क्लोज अटेंशन टू द पैरेंथेसिस। अगर पैरेंथेसिस पे क्लोज अटेंशन नहीं पे करेंगे तो गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि कंजंक्शन को ही आप लेकर चलें तो उसमें तो सबसे बड़ा गेम ही पैरेंथेसिस का है। हर जगह पर ऐसा ही है, कहीं पर आप पैरेंथेसिस को अगर मिस कर जाएंगे तो फिर आप जो है वो इवन अगर आप आउटर पैरेंथेसिस को भी अगर मिस कर जाएंगे ना, अगर इस चीज़ में आप आउटर को ही मिस कर जाएं, ये वाले पैरेंथेसिस ना लगाएं, ये वाले दिस वन एंड दिस वन, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि नॉट पी देन क्यू, ये एक अलग बन जाएगी और ये एक अलग बन जाएगी, क्योंकि एंड को हम एंड आखिर में सॉल्व करेंगे, फिर पहले एम्प्लीकेशन को कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो अप ऑन दी parentheses. Okay, now the last one, it is called resolution. It is the last rule of inference, and this states this thing that is on your screen, which should be again it is a better way अगर आप खुद इसको समझ लें, but I will elaborate it again, but first of all understand it yourself. Don't tell me an example of that, just understand it yourself and then I am going to elaborate it, ताकि आपके जहन में एक इमेज बना हुआ हो पहले से। Right, so the resolution is that if P or Q is true and not P or R is true, then that means that either Q is true or R is true or both are true. Trying to say that in Urdu language. Let's try to follow. Let's see if I can clearly say it or not. अगर P है या Q है, यानी कि दोनों में से कोई एक ट्रू है या दोनों भी हो सकते हैं, बट हमें ये पता है कि ये P और Q ट्रू है। अगर ये पूरा ट्रू है और साथ ही साथ ये पूरा भी ट्रू है, तो इससे ये साबित होता है कि Q ट्रू है या R ट्रू है। कैसे? अगर हम कहते हैं कि ये भी ट्रू है पूरा और साथ ही साथ ये भी ट्रू है, तो इसमें एक चीज़ जो रेड में आपको नज़र आ रही है दैट इज़ P। इधर P पॉजिटिव है, इधर P नेगेटिव है, यानी कि अगर इधर ट्रू हुआ तो इधर फॉल्स होगा, इधर फॉल्स हुआ तो इधर ट्रू होगा। तो अगर लेट सपोज इस पूरे को आप ट्रू कह रहे हो और कहते हो कि P ट्रू है, ये पूरा ट्रू है और फॉर एग्जांपल P भी ट्रू है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर P फॉल्स हो गया, जो कि ये प्रूव कर देगा कि R ट्रू है, क्योंकि हम ये भी कह रहे हैं कि ये पूरा भी ट्रू है। हम ये कह रहे हैं कि ये पूरा भी ट्रू है और ये पूरा भी ट्रू है। अज्यूम हम करते हैं कि अगर P ट्रू है तो ये साबित हो जाता है कि R ट्रू है, क्योंकि अगर R ट्रू ना होता तो फिर ये पूरा फॉल्स हो जाता, क्योंकि अगर P यहाँ ट्रू है तो यहाँ फॉल्स होता। लेकिन हम ये कह रहे हैं ये सारा ट्रू है, तो इसका मतलब है कि R फॉल्स है और ट्रू है। सिमिलरली अगर मैं ये कहता हूँ कि ये P नेगेटिव है, फॉल्स है, अगर ये P फॉल्स है और मैं ये कह रहा हूँ ये सारा ट्रू है, तो इसका मतलब है कि Q ट्रू हुआ। सो इस पूरी बात से मुझे ये साबित होता है कि अगर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो या तो Q ट्रू है या R ट्रू है। ऐसा नहीं हो सकता कि Q भी ट्रू ना हो और R भी ट्रू ना हो और ये पूरी चीज़ ट्रू हो, ऐसा कोई केस नहीं है। Again, it would be very helpful and very understanding for you if you try to come up with an example for that in your mind. बेशक उसको लिख दें, भेज दें, जैसा भी आप करना चाहें करें, but you will have to understand it. And now for the last thing, sorry, yeah, for the last thing we are going to prove some sort of a theorem. मैं देख लूँ ज़रा कहाँ तक हमने जाना है। ओके बस ठीक है, आखिरी कुछ चीज़ें रह गई हैं। सो लेट्स ट्राई टू प्रूव। अच्छा, इन सब को अगर आपने थोड़ा और बेहतर समझना है ना, पहली बात तो यही है कि आप इसकी एक्सरसाइजेज देखें, एक्सरसाइजेज अच्छी तरह से समझें। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि आप इन सब के ट्रूथ टेबल्स बनाएं। ट्रूथ टेबल्स आप जब बनाएंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ओके ये चीज़ हमेशा ट्रू हो रही है और ये वाकई सही कह रहा है कि Q और R में से कोई एक ट्रू होगा लाजमी। तो इनकी अगर आप ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो आप इस पूरी एक्सप्रेशन को देखेंगे, दिस इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रू, और इसके ट्रू होने पे आप ये भी देख लीजिएगा कि Q और R की क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, ताकि इम्प्लीकेशन भी सॉल्व हो जाए। ओके, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ थ्योरम दैट द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज़ इवन। ये हम एक थ्योरम प्रूव करना चाह रहे हैं, हमें पता नहीं है कि ये होता भी है या नहीं,
लेकिन फॉर थ्योरम, टू प्रूव अ थ्योरम वी मस्ट फर्स्ट अज्यूम कि ये चीज़ ट्रू है, और हम ऐसे वेज तलाश करेंगे जिससे ये चीज़ ट्रू हो जाए। ठीक है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज़ इवन। अच्छा, आगे जाने से पहले वो बजाय इसके कि वो चीज़ आपको नज़र आए इन अ स्लाइड, मैं वो खुद आपके सामने प्रूव कर देता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको नज़र आए तो वो आप सही तरह से समझ सकें। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट व्हाट इज़ एन इवन नंबर। कोई इवन इंटीजर जो होता है ई, वो एक ऐसा नंबर होता है जो कि जिसको मैं शो कर सकूं 2 मल्टीप्लाई बाय सम नंबर। ठीक है, अगर मैं किसी नंबर को ऐसे शो नहीं कर सकता तो वो इवन नहीं है। फॉर एग्जांपल 16 है, 16 को मैं ऐसे शो कर सकता हूँ, यस, 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 ही होता है ना, या फॉर एग्जांपल भाई 68 को मैं शो कर सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, so I can show it 2 multiplied by 34. So I can show an integer as 2 into this, 2 into something, provided that n is also an integer, this is also an integer. ठीक है, this is the basic definition of an even number. इसी तरह जो odd number हैं, ये इवन नंबर की डेफिनेशन है। जो ऑड नंबर है, फॉर एग्जांपल 17, 17 को मैं क्या ऐसे शो कर सकता हूँ 2 इंटू समथिंग। बताएं क्या नंबर आएगा कि मैं 2 इंटू समथिंग करके 17 निकाल सकूं। कोई नंबर ऐसा नहीं है कि जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 17 आए। ठीक है, इसी वजह से ये इवन नंबर नहीं है, क्योंकि अगर इवन नंबर होता तो 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग से शो हो जाता, 2 मल्टीप्लाई बाय एन, बट ऐसा नहीं है। इसको शो करने के लिए मुझे एक चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, और वो ये है कि पहले तो मैं इसको ऐसे शो करूँगा, लेकिन साथ ही साथ इसमें +1 करवाऊँगा। इसी तरह कोई और इवन ऑड नंबर ले लेते हैं, 53। 53 को मैं कैसे शो कर सकता हूँ, मैं शो कर सकता हूँ 2 इंटू कितना होगा, 21 नहीं, 31, 26 +1, राइट, थैंक यू, 26। इसी तरह ऑड नंबर एक और लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3। 3 को मैं कैसे शो कर सकता हूँ, 2 इंटू 1 +1, विच मीन्स कि ऑड की मेरे पास जो डेफिनेशन आई वो ये आई कि एवरी ऑड नंबर इज इक्वल्स टू 2 इंटू सम नंबर +1। दिस नंबर कैन बी एनीथिंग, इट इज़न सपोज टू बी एनी इवन नंबर। ठीक है, ये नंबर कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे कि एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, 19, 19 एक इवन नंबर है। ठीक है, तो उसको मैं शो करता हूँ 2 इंटू 9 +1। सो ये नंबर कोई भी हो सकता है बीच वाला, लेकिन बाकी चीज़ें 2 इंटू समथिंग +1 है, 2 इंटू समथिंग +1, यानी कि ऑड नंबर ऐसे शो होता है और इवन नंबर ऐसे शो होता है। ये ऑड नंबर की डेफिनेशन है, ये इवन नंबर की डेफिनेशन है। एन कह लें, के कह लें, कोई भी नंबर कह लें। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, तो बेसिकली यहाँ पर 2 इंटू के +1, इंटू भी मिटा देते हैं, साथ लिखा होता है तो यही होता है। सो ऑड नंबर होता है 2k +1 और इवन नंबर होता है 2k फॉर एवरी एनी नंबर k। नाउ कमिंग बैक टू आवर प्रूफ, आवर प्रूफ वाज सपोज टू बी कि प्रूफ करें कि क्या दो ऑड इंटीजर्स का सम इवन होता है या नहीं। सो लेट्स ट्राई टू प्रूव दैट। लेट n एंड m बी टू ऑड इंटीजर्स, दो ऑड इंटीजर हैं n और m। एवरी ऑड इंटीजर x कैन बी रिटन एज x इक्वल टू 2k +1, जो कि अभी मैंने प्रूव किया आपको, फॉर सम इंटीजर k। इसका मतलब यही है कि इन दोनों ऑड नंबर्स को मैं लिख सकता हूँ 2k +1 और 2k +1। ऑब्वियसली ये चूंकि दो अलग अलग ऑड नंबर्स हैं तो इसका k अलग होगा, इसका k अलग होगा। इसको मैं k2 कह देता हूँ, n वाले को k1 कह देता हूँ, यानी कि कोई भी नंबर है, बट k1 और k2 इसलिए लिखा है कि वी आर ट्राइंग टू एम्फेसाइज कि ये दोनों केस एक ही नहीं है। दिस इज़ अ डिफरेंट k, दिस इज़ अ डिफरेंट k, बट वी कैन राइट n एज 2k +1 एंड m एज 2k2 +1। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। नाउ कंसिडर दैट n प्लस m, इसी चीज़ को हम प्रूव करना चाह रहे हैं ना, कि सम ऑफ टू ऑड इंटीजर, दो ऑड इंटीजर्स कौन से हैं, n और m।
इनका अगर हम सम लेते हैं तो ऑब्वियसली दिस विल बी इक्वल टू n प्लस m। ये n है, ये m है, वी नो दैट फॉर सम वैल्यू k और k2, दिस प्लस दिस। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इट इज़ 2k1 प्लस वन, सॉरी 2k1 प्लस वन देन प्लस 2k2 प्लस वन और प्लस वन को मैंने साथ करके लिख दिया, तो बचा मेरे पास 2k1 और 2k2 अलग हो गए। ये हो गया 2k1 प्लस 2k2 प्लस 2। इन सब में से मैंने 2 कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन ले लिया तो अंदर ये बचा k1 प्लस k2 प्लस k1। ठीक है, अब नाउ लुकिंग एट इट कि जब मैंने इसको सम किया तो मेरे पास क्या जवाब आया, दिस वन। और ये जवाब मुझे प्रूव करके बता रहा है खुद कि ये एक इवन नंबर है। क्या मैं इसको कह सकता हूँ इवन नंबर है या नहीं, जो मैंने अभी सेलेक्ट किया हुआ, यस या नो में मुझे बता दें, आपको बात समझ में आ गई होगी होपफुली। क्या मैं इस सेलेक्टेड नंबर को इवन कह सकता हूँ या नहीं? वाई नॉट, वजाहत क्यों मैं इसको इवन नहीं कह सकता? अजहरुद्दीन भी यही कह रहे हैं कि नहीं कह सकते। अच्छा, वजाहत कह रहे हैं यस, अजहरुद्दीन कह रहे हैं नहीं कह सकते। हाँ, क्यों नहीं कह सकता? क्यों नहीं कह सकता? आर्ग्यूमेंट दें ना, प्रेमिस के ऊपर रहते हुए आर्ग्यूमेंट दें कि मैं इस नंबर को इवन नंबर क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अभी प्रूव करने वाला हूँ थोड़ी देर में कि ये इवन नंबर है। सम किया मैंने दो ऑड नंबर्स को और मुझे इवन नंबर मिला, लेकिन ये इवन है या नहीं सवाल ये है। अटेंडेंस का स्नैपशॉट लेके मुझे ईमेल भेज दें तब तक। हाँ भाई, अच्छा चले यस वाले ही बता दें, यस वाले बता दें कि इसको मैं इवन क्यों कह रहा हूँ, क्यों मैं इसको इवन कह रहा हूँ। हाँ, ये तो बात समझ में आ गई, नम को सम कर रहे हैं जब एन और एम को तो हमारे पास इवन नंबर आ रहा है। सवाल ये है कि मैं इसको इवन क्यों कह रहा हूँ जो मैंने सेलेक्ट किया है। कौन कह रहा है कि ये इवन है, कैसे प्रूव हो रहा है? नीचे तो वो कह रहा है बाय डेफिनेशन दिस इज इवन। व्हाई इज दिस इवन? This is your the name of your lecture, this prove why this is even. ओके, आप शाहजेब जैन कह रहे हैं कि क्योंकि ब्रैकेट्स में कुछ भी हो मल्टीप्लाई तो वो टू से हो रहा है ना, तो अगर कोई भी चीज़ टू से मल्टीप्लाई हो रही है तो हम कहते हैं कि वो इवन है, राइट? ठीक है। फलक शेर कह रहे हैं कि इवन है क्योंकि टू से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड में। ऑड होता तो टू से मल्टीप्लाई होके फिर प्लस वन होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, अजहरुद्दीन का एक आया है आर्गुमेंट, वो कह रहे हैं कि वन प्लस वन इक्वल टू टू इज़ इवन। ओके, सो माई क्वेश्चन वॉज कि वाई कांट आई से दिस एन इवन नंबर। आपने कहा था कि ये इवन नंबर नहीं है, क्यों नहीं है? सो नेवर द लेस में हम यही प्रूव कर रहे हैं कि ये इवन है। वजात अली कह रहे हैं इफ़ के वन एंड के टू आर इंटीजर्स, यस, आपने थोड़ा सा और एलाबोरेट कर दिया। अगर के वन और के टू इंटीजर्स हैं तो फिर ये इवन है। और के वन और के टू इंटीजर्स हैं ये हमें पता है, क्योंकि जब हमने के वन और के टू लिखे थे ना, तो वो इसी वजह से लिखे थे, इसी डेफिनेशन के मुताबिक जो कि अभी हमने प्रूव की थी थोड़ी देर पहले, कि भाई ये कोई इंटीजर, कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन कोई इंटीजर होगा। ठीक है, सो इट कैन बी एनी इंटीजर। सो ये तो बात तय है, बट इट्स गुड के कहना भी चाहिए। सफदर हुसैन भी यही कह रहे हैं क्योंकि ये टू का मल्टीपल है, राइट? सो एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज वी जस्ट प्रूव्ड कि इवन नंबर इज टू इंटू एनी नंबर, so this is any number, this thing is any number, and it is because it is multiplying by 2 we can say that it is an even number, hence proved that the sum of two odd numbers, this is odd, this is odd, the sum of two odd numbers is always going to be an even number. This is what we proved here. 9 plus 7
it is 16, an even number. 17 plus 3, it is 20, an even number. 1 plus 5, it is 6, an even number. So whenever you add two odd numbers, it is always going to be an even number. ठीक है? Can you prove what kind of number the sum of two even numbers will generate? दो even numbers अगर sum किया जाएगा तो उनका क्या जवाब आएगा? करते हैं हम यहाँ पे, चलें आपके सामने मैं कर लेता हूँ, आपके जहन में भी ये चीज़ होनी चाहिए. अगर दो इवन नंबर है, विच मीन्स के वी आर सपोज टू, के को मैं ए और बी कह लेता हूँ. ए और बी आर एनी इंटीजर्स. 2a 2b को सम कर रहा हूँ. दो इवन इसी तरह सब सम हो सकते हैं ना, 2a 2b. ठीक है, जब मैं इसको करता हूँ सम, तो बेसिकली मेरे पास जवाब आ जाता है 2 इंटू ए प्लस बी. तो इसका मतलब है कि ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है 2 से. तो हेंस प्रूव्ड कि अगर आप दो इवन को ऐड करेंगे तो फिर जवाब इवन ही आएगा. अब आपने कुछ चीज़ें करनी हैं, क्लास में यहाँ पर डिस्मिस कर रहा हूँ. आप ये प्रूव कीजिएगा कि, प्रूव नहीं बल्कि पहले इसका जवाब ढूंढना और फिर इसको प्रूव करना कि अगर मैं एक इवन और एक ऑड को प्रूव प्लस करता हूँ तो क्या जवाब आएगा. हमेशा, क्या हमेशा इवन आएगा या हमेशा ऑड आएगा, या हो सकता है कभी इवन आए, हो सकता है कभी ऑड आए. पहली चीज़ तो ये कि अगर मैं एक इवन और एक ऑड को प्लस करता हूँ तो क्या जवाब आएगा. और दूसरी चीज़ आपने ये प्रूव करनी है कि मैं अगर एक इवन और एक ऑड को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या जवाब आएगा. एक इवन और एक ऑड को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या जवाब आएगा, ये भी आपने प्रूव करना है. नेक्स्ट क्लास में होपफुली हम इसके ऊपर भी बात करेंगे और आपसे जवाब भी लेंगे. अटेंडेंस अगर मेरे पास आ गई है तो आई थिंक द क्लास शुड एंड हेयर. बाकी कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी अगर है तो वो बता दें. खलील अहमद कह रहे हैं कि ऑड ही आएगा हमेशा. किस पे जवाब दे देते. मैंने 3-4 सवाल पूछे थे, पता नहीं किसका जवाब आप ये दे रहे हैं. मैंने दो चीज़ें आपको कही हैं कि करनी है. एक ये कि अगर मैं इवन और ऑड का सम करता हूँ तो क्या जवाब आएगा, और अगर मैं इवन और ऑड को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या जवाब आएगा. इज़ इट नेसेसरी कि हमेशा ही ऑड आए, या इज़ इट नेसेसरी कि हमेशा ही प्लस आए और इवन आए, या फिर चेंज भी हो सकता है जवाब. ओके, सम करने पे कह रहे हैं कि ऑड ही आएगा हमेशा जब हम ऑड और उसको सम करेंगे. तो अगेन प्रूव इट. अगर आप प्रूव कर सकते हैं इस तरह तो दैट वुड बी गुड. अदरवाइज यू आर जस्ट स्पिटिंग आउट वर्ड्स. कोई बात मानने वाली नहीं है इसमें जब तक आप प्रूव ना करें. तो इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी यही काम हम करेंगे कि आया कोई चीज़ मल्टीप्लाई होने के बाद ऑड आती है या इवन आती है या फिर डिफरेंट भी हो सकती है. सो एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी अगर है तो पूछें, अदरवाइज द क्लास इज डिसमिस्ड. एनीथिंग टू ऐड? मल्टीप्लिकेशन में इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो सकते हैं. अच्छा, रिजवान कह रहे हैं. अच्छा, खलील कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने पे इवन ही आएगा. अच्छा आप, ठीक है, दीज आर जस्ट अजम्पशंस. इसको प्रूव अगर आप कर देंगे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा. नेक्स्ट क्लास में बताइएगा. और अगर ऐसा हो सके कि आप लिखें और प्रूव कर दें कि इवन है, तो साथ ही साथ ये भी प्रूव कर देना कि ऑड नहीं हो सकता. क्योंकि अगर आप ये प्रूफ मेरे पास ले आए ना कि सर इवन, देखें सर ये दो मैंने मल्टीप्लाई किए और इवन आ गया, और अगर मैं उसी दो को मल्टीप्लाई करके ऑड ले आता हूँ ना तो फिर आपका प्रूफ जो है वो फंस जाएगा. तो प्रूफ इस तरह से करना है आपने कि कोई गुंजाइश ना रहे मेरे गलत कहने की. सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज़ क्लास. थैंक यू वेरी मच. सी यू नेक्स्ट वीक.